پتہ نہیں کہاں کا غصہ کہاں نکال دیتا ہے. ایان تو پاگل ہو گیا ہے. مجھے ایان کو بتا دینا چاہیے تھا. کیا ہوا کہ نہیں بتایا؟ کہ میں اماں کے ساتھ جولر کی شاپ پہ گئی ہوں. ہر وقت اپنے آپ کو الزام مت دیا کرو. بیوی ہو تم اس کی، قیامت تو نہیں آ گئی نا. لیکن اگر بتا دیتی تو بات اتنی آگے تک نہیں جاتی نا امی. امی لیکن وہ خوش ہو کے نہیں دیتے. تم فکر مت کرو، میں کھینچتی ہوں اس کے کان. رگوں میں خون تو اس کے بابا کا ہی ہے نا. وہ خامخواہ غصہ ہو جائیں گے کہ میں نے آپ سے شکایت لگا دی ان کی. یہ بھی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے مجھے خود بات کرنی چاہیے. اپنے دل و دماغ میں پتہ نہیں کیا غلط فہمیاں لے کے پھرتا رہے گا. تھینک یو امی. کبھی کوئی غلط فہمی ہو تو میاں بیوی کو بیٹھ کے بات کر کے ختم کر دینی چاہیے. کر لو تم خود بات. بزنس کے معاملات میں توجہ دینے کی کوشش تو کی کم از کم. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ دیکھ کر. میں بھی موم سے بہت عرصے سے کہہ رہا تھا لیکن انہوں نے میری بات پر ٹرسٹ ہی نہیں کیا. بھائی میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ سب کچھ زارون کو سونپ دو. اب باپ کے سامنے نا چمچہ بننے کی کوشش مت کرو. اچھا بس بس، یہ سب کچھ میرا سکھایا ہوا ہے. یہ صاحب تو بہت سالوں کے بعد ہماری زندگیوں میں واپس آئے. ینگ مین، ایک منٹ. میرا خیال نکلتے ہیں آفس کے لیے. وہی روایتی میلو ڈرامہ شروع ہونے لگا. آپ سے بڑا ڈرامہ کوئی ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں. پراسرار روشنی کا مینار. سمندر کے کنارے ایک بہت پرانا مینار کھڑا تھا. ہر رات اس کی چوٹی سے ایک نیلی روشنی آسمان کی طرف اٹھتی، حالانکہ وہاں نہ کوئی رکھوالا تھا اور نہ ہی بجلی کا کوئی انتظام. لوگ اسے ایک معمہ سمجھتے تھے. قریب کے گاؤں میں 17 سالہ فہد رہتا تھا. وہ ہمیشہ مشکل سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک رات وہ لالٹن اور نقشہ لے کر مینار کی طرف روانہ ہوا. مینار کے اندر سینکڑوں پرانی سیڑھیاں تھیں. ہر منزل پر ایک جملہ لکھا تھا: ہمت کے بغیر کوئی منزل نہیں، علم کے بغیر کوئی روشنی نہیں، خدمت کے بغیر کوئی عظمت نہیں. فہد ان جملوں کو پڑھتا ہوا آخرکار چوٹی تک پہنچ گیا. وہاں اسے ایک قدیم اجزا لینس نظر آیا جو چاندنی کی روشنی کو منعکس کر کے دور آسمان تک بھیج رہا تھا. اس کے پاس ایک صندوق رکھا تھا. فہد نے صندوق کھولا تو اس میں ایک پرانی ڈائری تھی. پہلے صفحے پر لکھا تھا: یہ مینار جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا. اصل روشنی پتھر یا شیشے میں نہیں بلکہ اس انسان میں ہوتی ہے جو دوسروں کو صحیح راستہ دکھائے. فہد نے وہ ڈائری گاؤں کے لوگوں کو دکھائی. سب نے مل کر مینار کی مرمت کی تاکہ وہ دوبارہ سمندر میں سفر کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکے. چند سال بعد وہ علاقہ محفوظ سمندری سفر کے لیے مشہور ہو گیا اور فہد ایک بہترین انجینئر بنا جس نے کئی نئے لائٹ ہاؤس تعمیر کیے. جب کسی نے اس سے پوچھا تمہیں مینار میں کیا ملا، وہ مسکرا کر بولا: مجھے معلوم ہوا کہ زندگی کی سب سے قیمتی روشنی وہ ہے جو دوسروں کا راستہ روشن کرے. سبق: جو انسان دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے وہ خود بھی کبھی اندھیرے میں نہیں بھٹکتا. پراسرار روشنی کا مینار. سمندر کے کنارے ایک بہت پرانا مینار کھڑا تھا. ہر رات اس کی چوٹی سے ایک نیلی روشنی آسمان کی طرف اٹھتی، حالانکہ وہاں نہ کوئی رکھوالا تھا اور نہ ہی بجلی کا کوئی انتظام. لوگ اسے ایک معمہ سمجھتے تھے. قریب کے گاؤں میں 17 سالہ فہد رہتا تھا. وہ ہمیشہ مشکل سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک رات وہ لالٹن اور نقشہ لے کر مینار کی طرف روانہ ہوا. مینار کے اندر سینکڑوں پرانی سیڑھیاں تھیں. ہر منزل پر ایک جملہ لکھا تھا: ہمت کے بغیر کوئی منزل نہیں، علم کے بغیر کوئی روشنی نہیں، خدمت کے بغیر کوئی عظمت نہیں. فہد ان جملوں کو پڑھتا ہوا آخرکار چوٹی تک پہنچ گیا. وہاں اسے ایک قدیم اجزا لینس نظر آیا جو چاندنی کی روشنی کو منعکس کر کے دور آسمان تک بھیج رہا تھا. اس کے پاس ایک صندوق رکھا تھا. فہد نے صندوق کھولا تو اس میں ایک پرانی ڈائری تھی. پہلے صفحے پر لکھا تھا: یہ مینار جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا. اصل روشنی پتھر یا شیشے میں نہیں بلکہ اس انسان میں ہوتی ہے جو دوسروں کو صحیح راستہ دکھائے. فہد نے وہ ڈائری گاؤں کے لوگوں کو دکھائی. سب نے مل کر مینار کی مرمت کی تاکہ وہ دوبارہ سمندر میں سفر کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکے. چند سال بعد وہ علاقہ محفوظ سمندری سفر کے لیے مشہور ہو گیا اور فہد ایک بہترین انجینئر بنا جس نے کئی نئے لائٹ ہاؤس تعمیر کیے.
जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि जिंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतजाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सब ने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतजाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सब ने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतजाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सब ने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके।
चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वह न कोई रखवाला था और न ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं से एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वह न कोई रखवाला था और न ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं से एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वह न कोई रखवाला था और न ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं से एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई।
सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था।
असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा तुम्हें मीनार में क्या मिला, वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं इसे एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था।
फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं, बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं से एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं, बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं से एक कदीम अज्जा लेंस नज़र आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं, बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया।
वहीं इसे एक कदीम अज्जा लेंस नजर आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नजर आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं, इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहाँ इसे एक कदीम अज्जा लेंस नजर आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। एक रात वो लालटेन और नक्शा लेकर मीनार की तरफ रवाना हुआ। मीनार के अंदर सैकड़ों पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हर मंजिल पर एक जुमला लिखा था, हिम्मत के बगैर कोई मंजिल नहीं,
इल्म के बगैर कोई रोशनी नहीं, खिदमत के बगैर कोई अजमत नहीं। फ़िहाद इन जुमलों को पढ़ता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। वहीं से एक कदीम अज्जा लेंस नजर आया जो चांदनी की रोशनी को मुनकिस करके दूर आसमान तक भेज रहा था। इसके पास एक संदूक रखा था। फ़िहाद ने संदूक खोला तो इसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, ये मीनार जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। असल रोशनी पत्थर या शीशे में नहीं बल्कि इस इंसान में होती है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। फ़िहाद ने वो डायरी गांव के लोगों को दिखाई। सबने मिलकर मीनार की मरम्मत की ताकि वो दोबारा समंदर में सफ़र करने वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सके। चंद साल बाद वो इलाका महफूज समंदरी सफ़र के लिए मशहूर हो गया और फ़िहाद एक बेहतरीन इंजीनियर बना जिसने कई नए लाइट हाउस तामीर किए। जब किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मीनार में क्या मिला? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदगी की सबसे कीमती रोशनी वो है जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। सबक, जो इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है वो खुद भी कभी अंधेरे में नहीं भटकता। पुरस्कार रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक बहुत पुराना मीनार खड़ा था। हर रात इसकी चोटी से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती, हालांकि वहाँ ना कोई रखवाला था और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। लोग इसे एक मुअम्मा समझते थे। करीब के गांव में 17 साला फ़िहाद रहता था। वो हमेशा मुश्किल सवालों